Welcome guys to the channel, and to be regularly updated please subscribe to our channel. And today in this lecture we are going to see Venn diagram, जो हम लोग के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉमनली एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसी के साथ साथ ये हम लोग के पास जो होगा दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। सो लेट्स बिगिन विद द टिप्स। ओके, कमिंग ऑन टू द टिप्स। Okay, now coming on to the tips, the first tip that it is related to the relationship. It is related to the relationship. Okay, it shows us a relationship between different persons, places, events, things. So what in Venn diagram we are going to see the relationship between different persons, places, events and things. To identify the relationship between these persons, things, places and events, we have different diagram. Now the relationship is represented normally through the diagram, that is through the circles, squares, rectangle as well as triangle. So there can be n number of figures to represent the relationship. So in Venn diagram we are going to see the relationship through different figures. These are different figures. We are going to identify which figure is showing the best relationship. So what here, it is a possibility that the relationship between two, or commonly they ask for three things, relationship between two things and three things, and the most common figure is what? It is circle. The most common figure is circle. We have to identify relationship through circles, or we can say we can identify relationship through the overlapping circles, different circles. Now we have to identify the relation between the two items or three items or three things by what? By most commonly circle, or possibly by different mathematical figures. Okay, so we are going to see these relationship. On this basis we have two types of Venn diagram. First one, that is relation based, which means here you only need to identify the relationship by different figures. Okay, now coming to second, analysis based. Here we need to calculate a little bit. Our figure is given to us, but we have to identify a little bit mathematical calculation. We have to measure some numbers, we have to get different quantity by analyzing the figures. Okay, so now we will take up one by one. Firstly relation based and second analysis based. So coming on to the questions of type 1. Type of a question where firstly we need to develop a figure. When developing a figure, we need to identify the relation between different things, places, persons, events, processes. So firstly we will take development of figure. Okay, development of figure. Now first one, question number 1. In question number 1, week, day, month. Okay, अब आप तीनों में रिलेशनशिप देखिए, वीक में, डे में और मंथ में, राइट? तो आप लोग हमेशा सबसे स्मॉल से बनाना शुरू कीजिए। ओके, सबसे स्मॉल यहाँ पर इन तीनों में मेरे पास क्या है? सबसे स्मॉल है मेरे लिए क्या? डे। तो मैं सबसे पहले किसके लिए बनाऊंगा? डे के लिए मैंने बना लिया। ओके, डे किस में आता है अब हम लोग के पास? डे कम्स इन अ वीक, राइट? तो अब डे किस में आ जाएगा हम लोग के लिए? डे आ जाएगा मेरे लिए किसके अंदर? डे आ गया मेरे लिए किस में? वीक में। और वीक किस में आएगा मेरे लिए? वीक आएगा मंथ में। ओके, सो वीक कम्स अंडर मंथ। सो दिस इज द बेस्ट डायग्राम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, वीक, डे एंड मंथ, एंड वी आर सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ फिगर। ओके, नाउ सेकेंड वन, रेड, ग्रीन, कलर। अब अगर बात करें रेड और ग्रीन दोनों ही कलर्स है हमारे पास, और कलर बड़ी कैटेगरी जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो अगेन देखें हम लोग यहाँ पर सेकंड वाले का फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारे पास किसके लिए? रेड गिवन है।
देन क्या गिवन है मुझे, ग्रीन, ग्रीन के लिए हम लोग बनाएंगे, ओके, ग्रीन, ओके, एंड फाइनली थर्ड वाला क्या गिवन है, कलर। तो रेड और ग्रीन दोनों किसके अंडर में आएंगे, दोनों ही किसके अंडर में आएंगे, कलर के अंडर में आएंगे। तो एक हम लोग बड़ा सर्किल लेके किसके लिए बना लेंगे, दिस इज फॉर कलर्स, राइट। सो इट इज फॉर माई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो सबसे एप्रोप्रिएट फिगर होगी वो कौन सी होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। हमारे पास रेड ग्रीन कलर, दोनों कलर्स हम लोग के पास रेड और ग्रीन किसके कलर के अंडर आएंगे, सब कैटेगरी होगी। नाउ बुक पेन पेंसिल, अब अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें, बुक पेन पेंसिल, बुक पेन पेंसिल तीनों ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन तीनों की आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो तीनों के लिए हम लोग सर्कल्स कैसे बनाएंगे, अलग अलग सर्कल्स, क्योंकि तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। बुक अलग है, पेन अलग है और पेंसिल अलग है, तो तीनों के लिए आप लोग अलग बना लीजिए, बुक पेन एंड पेंसिल, ओके। तो ये हम लोग के लिए थर्ड वाले के लिए क्या हो गया, तीनों के सर्कल्स कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। नाउ फोर्थ वन, इंडिया, दुबई एंड दिल्ली, इंडिया, दुबई एंड दिल्ली। अब अगर देखें दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम लोग सबसे पहले दिल्ली को लिखेंगे हमारे पास। मैं यहां पर ले लेता हूं सबसे पहले किसको, दिल्ली को। दिल्ली किसके अंडर में आएगा, इंडिया के अंडर में आएगा, क्योंकि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड दुबई, दुबई इज इन यूएई, ओके। तो इंडिया से कहां हो गई, बाहर, तो जो दुबई का हम लोग के पास सर्कल होगा वो इंडिया से कैसे हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें इंडिया से आउटर में क्या हो गया हम लोग के पास, दुबई। सो दिस इज द राइट फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया, दुबई, दिल्ली। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इंजीनियर, डॉक्टर, वुमेन, ओके। इंजीनियर, डॉक्टर, वुमेन, इंजीनियर और डॉक्टर दोनों ही कैसे हैं, जेंडर न्यूट्रल है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हमारे पास इंजीनियर मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, मैन भी होगा, वुमेन भी होगा, ओके। डॉक्टर मैन भी होगा, वुमेन भी होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग किसके लिए बनाएंगे, वुमेन, ओके। अगर हम लोग देखें हमारे लिए सबसे पहले हम लोगों ने किसके लिए बनाया, दिस इज फॉर विमेन, एक सर्कल किसके लिए बना लिया, विमेन। अब विमेन्स में से कुछ कैसी होंगी हमारे पास, इंजीनियर्स, कुछ विमेन इंजीनियर होंगी हमारे लिए, right? Some women are engineer and some women are also doctor. तो कुछ women क्या हो गई, डॉक्टर, राइट। बट these are two different profession, दोनों कैसे हैं, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। कोई अगर इंजीनियर है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई अगर डॉक्टर तो इंजीनियर नहीं हो सकता हमारे पास। तो इसलिए दोनों के सर्कल कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर। तो दैट्स वाई अगर आप देखें तो दोनों के सर्कल को कैसा है, दोनों के सर्कल अलग अलग रहेंगे हमारे पास। सो दीज आर द some questions which are related to the development of figure, okay. Now we will take some more question of type 1 where we have to choose the option. So let's see, okay. So guys, now let's see other question which have already given the option. Now we have option A, option B, option C and option D, right? We have 4 options and we have to choose the answer of these 5 questions out of these options, okay. Earlier question was related to development of figure. Now we have to choose the best appropriate figure for these 5 questions, okay. So again I will adopt a similar pattern. हम लोग similar pattern adopt करेंगे। क्या, सबसे पहले हम लोग अपनी फिगर डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन चूज करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वाला बुक, चैप्टर, टॉपिक, ओके। तो सबसे छोटे से शुरू करें, फिर से सबसे छोटा इसमें से क्या है, टॉपिक, राइट। तो टॉपिक मेरे लिए टी, टॉपिक, टॉपिक किसके अंदर होगा, टॉपिक कम्स इन अ चैप्टर, एक चैप्टर में होगा हमारे पास कोई भी टॉपिक, ओके। नाउ चैप्टर किसमें होगा, इट शुड बी ना बुक, ये किसके अंदर होगा, ये हमारे पास होगा कहां पर, बुक में। तो हमारे पास एक ऐसी फिगर बन जाएगी हम लोग के लिए ओवरलैपिंग सर्किल की हमारे पास, जिसमें सब एक के अंडर में एक आएंगे हमारे पास, विच मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया, माई आंसर इज ऑप्शन ए फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन माई आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, कार, ट्रेन, ऑटोमोबाइल, ओके। कार, ट्रेन, ऑटोमोबाइल, अगर देखिए सबसे छोटा हम लोग के पास कार, तो अगर मैं देखूं यहां पर हमारे लिए ले लूं कार, कार किस में आएगी हमारे पास,
कार कम अंडर कैटेगरी ऑफ ऑटोमोबाइल, राइट। तो कार हम लोग के पास किसमें आ गई, कार कम्स इन ऑटोमोबाइल। एंड ट्रेन इज अदर, रेलवेज आर डिफरेंट, सो नाउ ट्रेन इज different. So this is my right figure for the question number 2. कार, ट्रेन, ऑटोमोबाइल। और क्वेश्चन नंबर 2 का किससे मैच कर रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है हमारे पास। तो 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज माय आंसर। नाउ थर्ड वन, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, पुअर। अब आप यहाँ पर देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, पुअर। क्या ये तीनों एक साथ हो सकती हैं? कोई इंसान ऑनेस्ट भी हो, कोई इंसान इंटेलिजेंट भी हो और पुअर भी हो। यस, इट्स पॉसिबल, विच मीन्स तीनों का एक जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन एरिया होना चाहिए। वन पर्सन कैन बी ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एज वेल एज पुअर। ये तीनों क्वालिटीज एक इंसान में हो सकती हैं, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान में हो सकती हैं। तो हम लोग देखें हमारे पास इसकी पॉसिबल फिगर कैसे बनेगी, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एज वेल एज पुअर। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट और पुअर, तीनों हम लोग के पास एक कॉमन एरिया होना चाहिए जहां पर ये तीनों हो सकती हैं हमारे पास। विच मीन्स कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, विद द ऑप्शन डी। सो थर्ड का क्या होगा हमारे पास, थर्ड का वी हैव ऑप्शन डी। नाउ फोर्थ वन, रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, सिल्वर रिंग्स। ओके, सबसे छोटे शुरू करें। अगर सबसे छोटे देखें हमारे पास कौन है, सिल्वर रिंग्स। सिल्वर रिंग्स हमारे पास, सिल्वर रिंग्स, राइट। सिल्वर रिंग्स किस में आएंगी, सिल्वर रिंग्स का अंडर कैटेगरी ऑफ किसकी कैटेगरी में होगी, रिंग्स की कैटेगरी में होगी, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स हो सकती है, डायमंड रिंग, प्लैटिनम रिंग, डिफरेंट डिफरेंट रिंग होगी, गोल्ड रिंग। तो रिंग्स के अंडर क्या आ गया हमारे पास, रिंग्स के अंडर हो गया हम लोग के लिए क्या, सिल्वर रिंग्स। और रिंग्स किस में आएंगी हमारे पास, रिंग्स का अंडर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स बहुत सारी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में आएगा, रिंग एक पर्टिकुलर हो गई हमारे पास। विच मीन्स हम लोग कहां पर, ये हम लोग के पास किस में आएगा, ऑर्नामेंट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग के लिए कौन सा बना, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए बना हम लोग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मेरे पास क्या हो जाता है, ए हो जाता है माय आंसर। लास्ट, डोर, विंडो एंड हाउस। डोर, विंडो और हाउस। हाउस है, हाउस में डोर भी होगी और विंडो भी होगी, लेकिन डोर और विंडो दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। डोर अलग होगा, विंडो अलग होगी। डोर का पार्ट नहीं है विंडो हमारे पास, तो इसलिए दोनों कैसे अलग अलग, सेपरेट। तो अगर हम लोग देखें घर में हमारे पास डोर एज वेल एज क्या होगी, विंडो, और ये दोनों किस में आएंगे, दे कम अंडर हाउस, राइट। डोर और विंडो किस में है, हाउस के अंदर है। तो अगर देखें हमारे पास हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माई ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबके आंसर निकाल लिए। फर्स्ट का क्या आया था, फर्स्ट का ए, सेकंड का क्या है हम लोग के पास, सेकंड का सी, थर्ड का क्या आया है, थर्ड का हम लोग के लिए डी, देन ए एंड बी। So these are relation based type 1, where we need to identify the relation through different circular pattern of figures. Okay, now we will take up other question of analysis based Venn diagram. Okay guys, so let's take up another question of which type, type 2. Okay, now in type 2, as I told you in the beginning, type 2 is based on analysis, which means यहाँ पे थोड़ा सा हमें estimate करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे हमारे पास। So हम लोग के पास एक फिगर है हमारे पास, जहाँ पर आप देखें ट्राइंगल है, सर्किल है, स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल है हमारे लिए। ओके, जब हम लोग के पास ये फिगर्स हैं, ओके, तो देखिए ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स इन गवर्नमेंट जॉब, राइट। What does square representing? Square जो बीच में वो क्या represent कर रहा है? It is representing women. Okay, women को represent कर रहा है square. Then educated person किससे represent हो रहा है? It is representing through circle. And last one, what does rectangle is representing? Rectangle is representing persons in private job. राइट, तो 4 चीजें हैं, 4 फिगर्स हैं, और वो 4 फिगर्स 4 अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखते हैं हम लोग उसी के बेस पे, हम लोग के पास उस फिगर के बेस पे हम लोग के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नंबर इज डिपिक्टिंग एजुकेटेड वुमेन हु हैव गवर्नमेंट जॉब। एजुकेटेड वुमेन हु हैव गवर्नमेंट जॉब, तो सबसे पहले आप लोग देखिए एजुकेटेड, एजुकेटेड यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एजुकेटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। एजुकेटेड किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एजुकेटेड रिप्रेजेंट हो रहा है सर्कल से। देन क्या होनी चाहिए,
इट शुड बी विमेन, विमेन होनी चाहिए हम लोग के लिए। विमेन इज रिप्रेजेंटिंग बाय, विमेन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, विमेन इज रिप्रेजेंटिंग बाय ए स्क्वायर। एंड फाइनली हु हैव गवर्नमेंट जॉब, और उनके पास साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी होनी चाहिए, विच मीन्स गवर्नमेंट जॉब किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब रिप्रेजेंट हो रहा है ट्राइंगल से। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जहां पर इन तीनों का एरिया मैच करना चाहिए, सर्किल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जॉब का नहीं पूछा है, वो नहीं होना चाहिए मेरे पास। ओके, तो अब देखिए हमारे पास कौन सा ऐसा एरिया आ रहा है जहां पर, अगर आप देखें जहां पर सर्किल भी हो, सर्किल ये रहा हम लोग के पास, ट्राइंगल भी हो और स्क्वायर भी हो हमारे पास, और साथ में क्या ना हो, रेक्टेंगल ना हो। तो रेक्टेंगल से बाहर, ये जो रेक्टेंगल वाली लाइन है इससे ऊपर देखें तो एक एरिया आ रहा है जहां पर 2 और 3 है। तो अगर देखें 2 ट्राइंगल में नहीं है, 2 ट्राइंगल में नहीं है, लेकिन अगर 3 देखें तो ये ट्राइंगल में भी है, सर्किल में भी है और स्क्वायर में भी है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है। रेक्टेंगल मुझे भी नहीं चाहिए था, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विच नंबर इज रिप्रेजेंटिंग एजुकेटेड वुमेन हु हैव गवर्नमेंट जॉब। सो इट्स नंबर 3 is representing educated women who have government job. Now coming to question number 2. What does number 9 represent? नंबर 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 9 देखिए, नंबर 9 किस किस में आ रहा है? सबसे पहले देखिए नंबर 9 किससे बाहर जाता है? नंबर 9 सर्किल में नहीं है। नंबर 9 किससे आउट हो जाता है? सर्किल से आउट हो जाता है, अगर आप ठीक से देखें। बाकी स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, बाकी तीनों चीजों में है। तो सर्किल के लिए क्या है हमारे पास? सर्किल से क्या रिप्रेजेंट हो रहा था? सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहा था हम लोग के लिए एजुकेटेड पर्संस। ओके, विच मीन्स अब ये एजुकेटेड की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी? अनएजुकेटेड की बात होगी। तो विच मीन्स हमारे पास अब बाकी तीनों चीजें, बाकी मेरे पास ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, एज वेल एज क्या है, रेक्टेंगल भी है। तो इन तीनों को मिला के क्या रिप्रेजेंट होगा? सिर्फ एजुकेटेड छोड़ के अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड पर्संस। ओके, अनएजुकेटेड विमेन, क्योंकि हमारे पास क्या है साथ में? स्क्वायर है। अनएजुकेटेड विमेन हु हैव गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब, जिनके पास दोनों है, गवर्नमेंट भी एज वेल एज प्राइवेट जॉब भी हमारे पास। तो नंबर 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 9 इज रिप्रेजेंटिंग अनएजुकेटेड women with government as well as private job. So number 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 9 इज रिप्रेजेंटिंग अनएजुकेटेड women with government as well as private job, right? ओके, अब मूव करते हैं हमारे इसी टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे। विच नंबर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड मैन? इनमें से 1 2 3 4 5 1 से लेके जो हम लोग के पास टोटल 13 तक नंबर है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एजुकेटेड मैन को। मैन के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अगर मैन के लिए नहीं दे रखा तो किसके लिए दे रखा है? विमेन के लिए दे रखा है हमारे लिए। विमेन किससे डिस्क्राइब हो रही है? विमेन हमारे लिए डिस्क्राइब हो रही है किससे? विमेन डिस्क्राइब हो रही है हम लोग के लिए किससे? स्क्वायर से। विच मीन्स स्क्वायर के अलावा जितने भी एजुकेटेड लोग होंगे वो वुमेन नहीं होंगी, तो कौन होंगे? वो मैन होंगे हमारे लिए। जब वो स्क्वायर में नहीं होंगे और एजुकेटेड है तो या तो वुमेन होंगी या मैन होंगे। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग, स्क्वायर से बाहर एजुकेटेड लोग हमारे पास, जो स्क्वायर से बाहर है, एजुकेटेड का सर्किल ये है हमारे पास, और जो स्क्वायर से बाहर है हमारे लिए वो कौन सा है? सिर्फ हम लोग के पास दो ही चीजें पूछी है। क्या क्या पूछा है? एजुकेटेड होना चाहिए और साथ में क्या है हमारे पास? मैन, वुमेन की कैटेगरी से बाहर होना चाहिए। तो अगर देखें नंबर 7 इज रिप्रेजेंटिंग एजुकेटेड और वो वुमेन में नहीं है, तो वो क्या होगा हमारे पास? वो मैन होगा। सो नंबर 7 इज रिप्रेजेंटिंग एजुकेटेड मैन ओनली। इसके अलावा हमारे पास ना ही गवर्नमेंट जॉब पूछा, ना ही प्राइवेट जॉब पूछा। सो दिस इज एनालिसिस बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी जस्ट नीड टू पिक अप द नंबर्स। हमें नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग एक अपना लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मोर एनालिसिस वेयर अ लिटिल बिट कैलकुलेशन इज नीडेड। ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन 2। ओके, now this is also based on analysis के बेस पर ही है हमारे पास, but now here is a difference. Now here is number of families. Now if you see, यहाँ पर हमारे पास नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, यहाँ पर हमें बता रखा है कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास
क्या क्या चीजें हैं। अगर हम लोग देखें सबसे पहले हमारे पास जो ये हम लोग पास लेफ्ट साइड वाला सर्किल है, ये कौन है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वीसीआर, ये वो फैमिलीज हैं जिनके पास क्या है, वीसीआर। जो राइट साइड वाला सर्किल है हमारे पास वो कौन है, तो वो फैमिलीज हैं जिनके पास क्या है, टीवी है, जिनके पास क्या होगा, टीवी होगा। तो दो सर्किल हो गए, एक लेफ्ट साइड वाला सर्किल जिनके पास वीसीआर है, वो फैमिलीज के नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास। ओके, राइट साइड वाला सर्किल वो फैमिलीज हैं जिनके पास क्या है, टीवी है जिनके पास। ओके, और उन दोनों के बीच में एक हम लोग के पास दे रखा है स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर दे रखा है दोनों सर्कल्स के बीच में, जो हम लोग के पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर। तो स्क्वायर जो है दोनों सर्कल्स के बीच में वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज को जिनके पास क्या है, जिनके पास स्कूटर है। एंड द रेक्टेंगल ब्लू, जो नीचे रेक्टेंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कार, जिन फैमिलीज के पास क्या है, कार है। तो अलग अलग यहाँ पर फिगर्स, अलग अलग चीजों का रिप्रेजेंटेशन है, और उसमें भी हमारे पास नंबर्स दे रखे, नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नंबर एक्चुअल नंबर्स है हमारे पास फैमिलीज के। उसी के बेसिस पे हम लोग को से एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सके। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। ओके, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग ओनली वन थिंग। कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, विच मीन्स आइदर टीवी और कार और वीसीआर और स्कूटर, कोई भी एक चीज चलेगी, या तो टीवी हो या कार हो या हम लोग के पास स्कूटर हो या वीसीआर हो, बस एक ही चीज होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास कितनी ऐसी फैमिली है, सबसे पहले जिनके पास कार है, हम लोग को नजर आ रहा है कितनी हो गई वो, 40। ओके, सो दिस इज 40 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास क्या है, कार है जिनके पास। अब आते हैं हमारे पास कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास सिर्फ क्या है, वीसीआर है, जो लेफ्ट साइड वाला सर्किल है। तो अगर देखिए 110 सबसे साइड में, ये वो फैमिलीज है जिनके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली वीसीआर। तो ये कितना हो गया हम लोग के लिए, 110। ओके, अब आते हैं हम लोग राइट साइड वाले सर्किल पे, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग ओनली टेलीविजन, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टीवी होगा। तो वो हम लोग के पास राइट साइड पे क्या है, 50। ये वो फैमिलीज हैं जिनके पास खाली क्या होगा, ओनली टेलीविजन। तो हम लोग ओनली टेलीविजन वाली फैमिलीज को ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया हम लोग के लिए, 50। आप देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग ओनली स्कूटर, कितनी ऐसी फैमिलीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ स्कूटर है। अगर देखिए ये हम लोग के पास सर्किल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और नीचे आकर किससे कर रहा है, नीचे आकर हम लोग के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, ये हम लोग के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज से जिनके पास कार है, रेक्टेंगल है, विच मीन्स कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिनके पास ओनली स्कूटर होगा। हम लोग के पास सारी ऐसी फैमिली जिनके पास स्कूटर के साथ साथ एक चीज और होगी एटलीस्ट, तो इसलिए ओनली स्कूटर वाले कोई भी लोग नहीं है। ओके, तो अब हम लोग इसका टोटल कर ले, हमारे पास कितना आ जाता है इसका टोटल, इसका टोटल आ गया हम लोग के लिए कितना, 200। सो हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, देयर आर 200 फैमिलीज व्हिच आर हैविंग ओनली वन थिंग, जिनके पास सिर्फ ओनली एक चीज है हमारे पास। ऐसी कितनी फैमिलीज हो गई, टोटल 200, 40 ओनली कार वाले, 110 ओनली वीसीआर वाले, 50 ओनली टीवी वाले। तो ओनली वाले, ओनली एक चीज वाले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो गई, 200। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच हैव ऑल फोर थिंग्स। ओके, अब यहाँ के इसका रिवर्स क्वेश्चन, जिनके पास चारों चीजें होनी चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, वीसीआर भी होना चाहिए, स्कूटर भी होना चाहिए और कार भी होना चाहिए। तो देखिए ऐसी हम लोग पिक्चर देखें जहां पर हम लोग के पास चारों का एक कॉमन एरिया, तो अगर चारों का कॉमन एरिया देखें हमारे पास, तो यहाँ पर सब में चारों का कॉमन एरिया, दोनों सर्कल्स का कॉमन एरिया कहाँ पर, यहाँ पर 80 एंड 20। लेकिन जो 80 है वो किससे बाहर है, वो रेक्टेंगल से ऊपर है, रेक्टेंगल से बाहर है। तो अगर देखें हमारे पास कौन सा हो जाता है यहाँ पर, 20 ऐसी फैमिलीज है जिनके पास स्कूटर भी है। ओके, वो हम लोग के पास स्क्वायर में भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं, जिनके पास कार भी है, जिनके पास वीसीआर भी है और उनके पास टेलीविजन भी है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 20 फैमिलीज आर देयर व्हिच आर हैविंग ऑल द फोर थिंग्स, जिनके पास सारी चारों चीजें हैं हम लोग के पास। सो हियर वी विल पुट नंबर ऑफ फैमिलीज, 20 फैमिलीज आर देयर व्हिच आर हैविंग ऑल द फोर थिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स टेक two more question with the same diagram. So coming to question number 3. Okay, question number 3, find out number of families which have scooter.
अब हम लोगों से पूछा है उन फैमिलीज के बारे में जिनके पास क्या होना चाहिए, स्कूटर। उन्होंने उसके बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी स्कूटर के साथ एक चीज और हो या दो चीज और हो। स्कूटर वाली फैमिलीज, चाहे उसके पास सिर्फ स्कूटर हो या स्कूटर के साथ एक चीज हो, दो चीज हो, तीन चीज हो, तो आप लोग को वो फैमिलीज आइडेंटिफाई करनी है जिनके पास क्या है, स्कूटर है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्कूटर कौन सी फिगर से रिप्रेजेंट हो रहा था, स्कूटर वॉज रिप्रेजेंटिंग बाय अ स्क्वायर इन द मिडिल, जो मिडिल में स्क्वायर है उससे रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास क्या, स्कूटर, राइट। तो हमें स्क्वायर में देखना है, स्क्वायर में कितनी फैमिलीज है जो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर, राइट। तो अगर आप देखें हमारे पास वो कितना है, हमारे पास स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, 18 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 एज वेल एज एक यहाँ पर भी छोटा सा 15 है जो स्क्वायर में आ रहा है हमारे लिए। ओके, तो हम लोग फिर से देखते हैं हमारे पास एक और 15। ओके, तो आप देखिए ऊपर वाले स्क्वायर में जितना था 18 80 30 18 80 30 10 20 15 10 20 15 और एक ये हम लोग के पास जो छोटा सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास दोनों सर्कल्स के नीचे लेकिन स्क्वायर के अंदर होगा हमारे पास, दैट इज 15। तो ये 15 भी लास्ट में एक बार आप लोग इसका सम करिए, 80 प्लस 18 प्लस 80 30 प्लस 10 प्लस 20। अगर हम लोग इन सबका सम करेंगे हमारे पास टोटल, तो हम लोग के पास इनका सम कितना आ जाएगा, इन सबका सम आ जाएगा हम लोग के पास कितना, इनका टोटल 80 प्लस 180 188। तो हमारे पास कितनी ऐसी फैमिलीज आ गई, देयर आर 188 फैमिलीज। हम लोग के लिए कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी, 188 फैमिलीज व्हिच हैव व्हाट, व्हिच हैव स्कूटर, राइट। तो हम लोग के पास स्कूटर निकालना था, तो हम लोगों ने क्या, स्क्वायर में जितनी भी फैमिलीज आई थी सबको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जो अगेन इसी पे बेस्ड है। फाइंड आउट नंबर ऑफ फैमिलीज हैव टीवी एंड वीसीआर बोथ। कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास क्या है, टीवी और वीसीआर दोनों चीजें हैं। बाकी की बात नहीं कर रहे, बाकी हो या ना हो चलेगा हमारे पास, लेकिन क्या होना चाहिए, टीवी और वीसीआर दोनों होना जरूरी है। टीवी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, टीवी इज रिप्रेजेंट बाय अ सर्किल ऑन द राइट साइड एंड वीसीआर रिप्रेजेंटिंग बाय अ सर्किल ऑन अ लेफ्ट साइड। तो ओके, तो दोनों सर्किल्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे पास वीसीआर और टीवी। तो अब ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जब दोनों चीजें होनी चाहिए तो वो कौन सा एरिया है, वो ये एरिया होगा बीच का जहां पर इन दोनों का कॉमन होगा। ये वो फैमिलीज होंगी जिनके पास टीवी भी होगा और उनके पास क्या होगा, वीसीआर भी होगा। तो अगर देखें हमारे पास दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन 80 एंड 20, 80 और 20। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 एज वेल एज 20। टोटल कितनी ऐसी फैमिलीज हो गई जिनके पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो जाती हैं वो कितनी, 100। सो 100 फैमिलीज आर देयर व्हिच हैव बोथ टीवी एज वेल एज वीसीआर। okay, so this was related to a Venn diagram where we have seen both the type of questions, relation based as well as analysis based. So please try your questions, please like our video, as well as if you have any query please put in a comment section. Thank you.